Kindly like this video, subscribe to my channel Kyani's World, and press the bell icon for further updates in the future. When most people think of the Renaissance, they think of Italy. A sun-kissed realm of popes, piazzas and palazzos. A place filled with hugely talented artists like Leonardo and Michelangelo. A generation who, in the 15th century, left the Middle Ages behind and created a glorious new kind of art. More inventive and more exuberant than anything seen before. When most people think of the Renaissance, they don't think of Britain. While the Italians were busy building a modern world, the British were still stuck in the medieval mud. The Renaissance is supposed to have passed us by. But that isn't true. The British did have a Renaissance, and it was bold, it was beautiful, and it was utterly brilliant. Yet for some reason, we've all but forgotten it. In this series, I want to rediscover our forgotten Renaissance, a dazzling movement that flourished from around 1500 to the Civil War 150 years later. That gave us our first great paintings, our first stately homes, our earliest scientific breakthroughs, and perhaps the finest writer of them all. A movement that catapulted us out of the Middle Ages and laid the foundations of a modern British culture that still shapes us today. This series isn't about kings and queens or Tudors and Stuarts. It's about the painters, sculptors, poets, playwrights, composers, inventors, explorers and craftsmen who together revolutionised the way we saw the world. And this episode is about how it all got started. How a handful of brilliant European artists brought the new ideas of the Renaissance to Britain. How we learned from their techniques, experimented with their ideas, and through them began to develop a voice of our own. Today's topic is Renaissance and Dr. Faustus. It's about how the Renaissance age influenced Christopher Marlowe to develop such an outstanding play, Dr. Faustus. इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो है रेनेसांस एज ने इन्फ्लुएंस किया है डॉक्टर फॉस्टस को पैदा करने में. और ये डॉक्टर फॉस्टर इज one of the top plays of Renaissance age. It reflects all elements of Renaissance in it. And matter of fact, the way Christopher Marlowe presented his hero, Dr. Faustus, we can find himself in it, you know. और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी जैसे मिल्टन ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया था सैटर्न का, तो ऐसे लगता है जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लोव ने डॉक्टर फॉस्टस का जो है वो कैरेक्टर क्रिएट किया. तो साथियों, मैं आज सबसे पहले इस गुफ्तगू का आगाज करूंगा. मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे. मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं की कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दूं आज, तो फिर जम के इसके ऊपर बातचीत करेंगे. तो मेरी ख्वाहिश होगी कि जो क्वेश्चंस हैं वो आप एंड पे पूछें, ताकि हम इसको एक बड़े अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट है इसको ले सकें. क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का जो रेनेसांस है, इसका कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है कि हमारे अगले 3 प्लेस, नंबर 1 Dr. Faustus, number 2 Hamlet by Shakespeare, and the third one is Beggar's Opera by John Gay. They all are influenced with this Renaissance elements. So it's very significant.
that first of all, I go through the main features of Renaissance age. सबसे पहली बात तो ये है कि there are three factors, और वो तीन फैक्टर्स को मैं साथ लेके चलना चाहता हूं आपके साथ. पहला जो एलिमेंट है वो है इंटेलेक्चुअल चेंज. आप इसको रिलीजियस चेंज भी कह सकते हैं, आप इसको जो रिलीजियस या डॉगमाज हैं उसको चैलेंज करना भी कह सकते हैं. तो पहली चेंज जो है वो क्या है, वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की चेंज. इंसान जो है वो चैलेंज कर रहा है उन रिलीजियस डॉगमाज को, उस क्रिश्चियन चर्च की वैल्यूज को जो उस टाइम पर अवेलेबल है. नंबर टू जो 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 एड्रेस कर रहा है वो इकोनॉमिक चेंज. रेनेसांस पीरियड की वजह से बड़ी जबरदस्त किस्म की इकोनॉमिक चेंज आ. ये चेंजेस क्या है? ये चेंजेस ये है साथियों कि पहले एक फ्यूडल सिस्टम है जो वहां पर चल रहा था, और 14th सेंचुरी से ऑनवर्ड 16th सेंचुरी तक हम ये रिफ्यूज देखते हैं कि ये जो फ्यूडल सिस्टम है ये कोलैप्स कर रहा है, और इसकी जगह कैपिटलिज्म जो है वो आगे बढ़. मैं बाद में इंशाल्लाह ताला आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन the main qualities or characteristics of capitalism. But first of all, let me go that the second big change was the economic change. और फिर थर्ड चेंज जो है वो इन दोनों के यानी I'm talking about the intellectual change, and then I'm talking about the economic change. Then because of that there is a political change, and because of the political change there is a change in social order. हैमलेट में हम देखते हैं कि कैसे एक सोशल ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो गया. एक किंग है हैमलेट के नाम से, हैमलेट सीनियर, जिसको मार दी जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, अननेचुरल डेथ है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक सोशल जो है वो अपीवल पैदा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि सोशल ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो. नाउ तीन चीजें वी वर टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस चेंज, which is we can call intellectual change. Second one is economic change, and the third one is political change. Now these big changes are coming up. और कौन इसको खींच रहा है? Renaissance. अब Renaissance क्या है? Renaissance is a French word which means rebirth और reawakening. यानी इंसान क्या हो रहा है? दोबारा पैदा हो रहा है, इंसान का जन्म दोबारा हो रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आइडियाज पहले थे वो आइडियाज चेंज होकर नए आइडियाज जन्म ले. सो वी कैन कॉल रेनेसांस एन एज ऑफ आइडियाज. और इस एज ऑफ आइडियाज ने दुनिया को भरपूर तरीके से ट्रांसफॉर्म किया. और साथियों इन तीन चीजों की जब आपस में ये जुड़ी है तो फिर एक टेक्नोलॉजी पैदा हुई है जिसको हम बुक प्रिंटिंग कहते हैं. और जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि तमाम चीजों ने एक रेडिकल चेंज की तरफ जो है वो रागब कर दिया यूरोप को, और यूरोप जो है वो डार्क एजेस से निकल के एक प्रोग्रेस के ईरा में दाखिल होता है. सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू होराइजन फॉर यूरोप. और वहीं से फिर इंग्लैंड पिकअप करता है लेटर ऑन, और इंग्लैंड जो है वो अपने आप को डेवलप करना शुरू करता है, और वहां से फिर हमारे पास लिटरेचर की चीजें आना शुरू हो जाती हैं. और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास शेक्सपियर है, हमारे पास मार्लोव है, थॉमस किड है. तो हमें नजर आता है कि एक सीरीज ऑफ चेंज है इन राइटिंग स्किल्स, और ड्रामा जो है वो इट बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, और ड्रामा छा जाता. ये है वो बुनियादी. तो लेट्स मूव ऑन वन बाय वन. और सबसे पहले देखते हैं कि रिलीजियस चेंज क्या आ रही है, और इंटेलेक्चुअल जो डिबेट है वो क्या चल रही. तो साथियों हम कैंटरबरी टेल्स से हमें अंदाजा हुआ था कि फ्रायर से लेके मॉन्क से लेके जो रिलीजियस क्लर्जी है वो दे आर हाईली करप्ट, और वो क्या कर रहे हैं कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग. वो पैसे मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा तो किसी के पास किसी ने सिन कमिट किया है, उसे कहते हैं आ जाओ पैसे दो, सिन रिमूव करा देते हैं तुम्हारा. तो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि जो है वो क्या है, एक नन भी देख लें, नन की कैसी वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं
हम देख रहे हैं कि तमाम जो करेक्टर्स हैं वो जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये चीज हमारे लिए जो है ना बड़ी सिग्निफिकेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि करेक्टर्स जो है वो जो है वो डुप्लीकेट लाइफ गुजार। तो हमें जब करप्शन किसी इलाके में बढ़ेगी तो क्या हो, जब करप्शन किसी किसी सोसाइटी में बढ़ेगी तो क्या हो, वो ये होगा कि वो सोसाइटी जो है वो मुतासिर होने लग जाएगी और वहां पर जो लोग हैं वो मुनाफिक होने शुरू, और बिलाखिर मुनाफिकत जो है उसकी एक लिमिट है उनकी। हमें ये भी पता है, कैंटरबरी टेल्स के जरिए हमें पता चला है कि 1/10 जो लैंड है वो ऑक्युपाई करता है चर्च, और चर्च इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो डोमिनेट कर, और उस वो जो चर्च है उसकी डोमिनेट करने की वजह से क्या हो रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि उनकी तरक्की रुक गई। There is a lack of progress because of church involvement in their daily life. Now, होता क्या है कि इस सिनेरियो के अंदर लोगों का रुझान ह्यूमनिज्म की तरफ चला, लोगों का रुझान प्रोटेस्टेंट रिलीजन की तरफ चला। प्रोटेस्टेंट रिलीजन एक और क्रिश्चियनिटी की फॉर्म है जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो कैसे कैथोलिक से डिफरेंट है और रिलीजन से डिफरेंट है, और वो ये कहती है कि आप प्रैक्टिकल हो जाएं, और ये कि आप बाइबल घर पे भी पढ़ सकते हैं। आपके लिए लाजमी नहीं कि आप जाए चर्च में जाएं, वहां पर सेरेमनीज अटेंड करें, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ कि रिसोर्सेज जो थे वो अब आम लोगों तक पहुंचने लग गए। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज जो थे वो वो उनको एक मौका मिल गया कि वो हर तरफ जा सके, हर मासेस के अंदर जो है वो इल्म फैल सके। ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म ये है कि इंसान का बिलीव अपने ऊपर होगा। उसने सोचा कि यार मैं भी एक चेंज ला सकता हूँ, मुझे एक्सटर्नली सोल्यूशन ढूंढने के बजाय मैं इंटरनल भी सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, और मैं नॉलेज इख्तियार कर सकता हूँ। यूनिवर्सिटीज का नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज, मेटेरियलिस्टिक नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, logic, mathematics, they can help me out in solving things. Why should I look out for theology? और यही चीज यही क्वेश्चन जब डॉक्टर फॉस्टर्स को हम पढ़ेंगे, और डॉक्टर फॉस्टर्स के पहले सीन के अंदर जो है वो क्या होता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स अपनी स्टडी रूम में बैठा होता है और वो यही क्वेश्चन पूछता है, कहते हैं यार ये जो इल्म है ये तो मैं यानी वो थियोलॉजी से तंग आ गया, जबकि पीएचडी किसमें की है उसने? थियोलॉजी में की है, रिलीजियस थियोलॉजी में की, और वो डिस्टर्ब। उसी तरह आम आवाम भी उस जमाने में क्या थी, रेनेसांस में डिफरेंट। अच्छा साथियों, एक मेरा जुमला है जो मैं मुसलसल कहता हूं और मैं इस दफा फिर कहना चाहता हूं आपसे, और लेट मी से दिस कि जो लिटरेचर है मेरे पर्सपेक्टिव में, इट्स माय पर्सपेक्टिव एंड इट्स अ न्यू हिस्टोरिसिस्ट पर्सपेक्टिव, लिटरेचर इज टाइम बाउंड, स्पेस बाउंड। लिटरेचर यूनिवर्सल नहीं है। लिटरेचर को स्टडी करने के लिए जरूरी है कि हम उसके ईरा में जाएं। डॉक्टर फॉस्टर्स को पढ़ने के लिए, हैमलेट को पढ़ने के लिए, जॉन गे को पढ़ने के लिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम उनके पीरियड में जाएं, उनके पीरियड में देखें कि उनके उस जमाने के हालात क्या थे। क्योंकि हम ये कहते हैं, हम ये समझते हैं एज ए न्यू हिस्टोरिस्ट, हम ये समझते हैं कि जो लिटरेचर होता है इट्स प्रोड्यूस्ड बाय टाइम, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एनवायरनमेंट ऑफ दैट टाइम, और इट्स रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ दैट एज। अब आगे चलते हैं। सेकंड जो इशू है और जो सेकंड चेंज है, बिग चेंज है, वो इकोनॉमिक चेंज। अगर साथियों आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी चेंज, क्योंकि यूरोप जो था वो फ्यूडलिज्म के अंडर था। फ्यूडलिज्म के अंदर रहने की वजह से वो पीछे था, और साइंस और दूसरी जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच थी वो उसके अंदर बड़ी कम थी। फ्यूडलिज्म से क्या था कि चंद लोग फायदा उठा रहे थे और बाकी लोग जो थे उनके मजारे थे और वो उस तरह के काम, जिन्हें हम सब कहते हैं। नाउ व्हाट हैपन कि एक नई क्लास पैदा हुई इकोनॉमिक सिस्टम चेंज करने से, वो थी मर्चेंट क्लास। इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ कैपिटलिज्म के। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कैपिटलिज्म क्या चीज है। कैपिटलिज्म ये है साथियों कि आप ये कहते हैं कि द प्रोडक्शन शुड बी इन कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो चीजें बनाएगा। हुकूमत का काम
जो है वो बिजनेस चलाना नहीं होगा, बल्कि ये आम बंदे इसको चलाएंगे। यानी इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो इंडिविजुअल के पास जाएगा। ठीक है। सेकंड इसके इसके अंदर ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने कहा वो प्राइवेट होंगे। सेकंडली क्या होगा कि इसकी बेस प्राइवेट प्रॉफिट है, प्राइवेट प्रॉफिट। यानी इंसान अपने प्रॉफिट कमाने के चक्करों में ये कैपिटलिज्म की पना लेते। बैंक्स आप देख लीजिए कैसे वो मुनाफा कमाते हैं और वो कैसे सूद के ऊपर बिजनेस करते हैं। थर्ड चीज जो है जो कि कैपिटलिज्म है, वो है प्रॉपर्टी ओनरशिप। यानी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकेंगे, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं और आप उसकी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि कैपिटलिज्म के अंदर थी, और ये इससे पहले इस फ्यूडल सिस्टम में नहीं, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में तो लॉर्ड या किंग जो था उसी के पास सारी जायदाद थी और वही मालिक था। ये बाकी सब तो जो थे वो सब थे। तो नाउ कैपिटलिज्म के आने की वजह से जो था वो रेनेसांस ने ये कहा कि इंसान जो है वो अगर उसको अपना प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, अगर उसको अपना कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, तो वो क्यों स्ट्रगल करे, वो क्यों चीजों को लेकर आए, वो क्यों इतनी मेहनत करेगा, लगन करेगा। लगन तो तब करेगा जब उसे कुछ अपना नजर आएगा इसको। और इसी से कैपिटलिस्ट सोच पैदा हुई और यूरोप ने इस कैपिटलिस्ट सोच को प्रमोट किया। तीसरी चीज जो रेनेसांस पीरियड के अंदर हमें नजर आती है वो है सोशल ऑर्डर की डिस्टर्बेंस। क्योंकि एक फ्यूडलिज्म दुनिया से जा रहा था और उसकी जगह एक नया सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम आ रहा था, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे आया हुआ नहीं था। डॉक्टर फॉस्टर्स का जमाना भी यही है साथियों, और हैमलेट का जमाना भी। यानी एक सिस्टम जा रहा है और दूसरा सिस्टम अभी तक मुकम्मल तौर पे आया नहीं, और इसकी वजह से क्या एक सोशल डिसऑर्डर, ये समझना। ये मैं जब टेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको साथियों, तो मैं आपको ये पॉइंट आउट करके दिखाऊंगा कि देखिए कैसे कैसे ये सोशल डिसऑर्डर फैल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा है। अब जब ये तीन फैक्टर्स मिलते हैं आपस में और यहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है, तो रेनेसांस जो है वो ट्रिगर हुई। सबसे पहले ये इटली से अमर्ज होती हुई फ्रांस पे पहुंचती हुई ये बिलाखिर जो है ये दाखिल हो जाती है इंग्लैंड के। क्रिस्टोफर मार्लो एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन उसने हासिल की। वो ड्रामाटिस्ट, वो इन रियल वर्ल्ड में रेनेसांस मैन। क्योंकि रेनेसांस मैन क्या है? रेनेसांस मैन जब इन तीन फैक्टर्स को मैंने आपको सामने रखा, रेनेसांस मैन ये कहता है कि मुझे इसमें क्या मिला, मैं सबसे पहले हूं दुनिया में, मैं इंडिविजुअल हूं और मुझे मुझे आई शुड एक्वायर पावर थ्रू थ्रू एनी मीन्स। मुझे पावर चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, और ताकत को गेन करने के लिए आई कैन यूज एनी मीन्स, फेयर और अनफेयर, आई विल यूज दिम। ये किसने उसे सिखाया? ये उसे मैकियावेली ने सिखाया। मैकियावेली एक बहुत बड़ा राइटर है, फिलोसफर है रेनेसांस पीरियड। वो उसने किताब लिखी, उसका नाम था दी प्रिंस। प्रिंस में वो ये कहता है कि बात ये है कि बादशाह को कैसा होना चाहिए। वो कहता है कि बादशाह को चालाक होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, वो धोखेबाज हो, वो लुटेरा हो, वो फायदा उठाना चाहता हो, एम्बिशियस हो, और वो क्या करे कि बाय एनी मींस वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करे। अब अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स को देखें, अगर हम हैमलेट के अंदर क्लॉडियस का कैरेक्टर देखें, ठीक है, तो हमें नजर क्या आएगा? हमें नजर ये आएगा कि जो मैकियावेलियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो हमें नजर आएगा। ये जो मैकियावेलियन लीडरशिप है ये किस बात में बिलीव करती है? ये बात में बिलीव करती है कि अपने पॉलिटिकल राइवल्स को खड़ा ही ना होने दिया जाए, उनको अब्यूज किया जाए, उनके साथ ज्यादती की जाए, उन्हें फारिग किया जाए, और नेगोशिएट किया जाए इर्द गिर्द की रियासतों के साथ, उनके साथ मिलजुल के देखा जाए कि कैसे डिप्लोमेटिकली ग्रो किया जा सकता है। अगर वो ना हो तो फिर जंग की जाए, और जंग ऐसी की जाए जिसमें जीत नजर आए, और दूसरे मुल्कों में भी अपने आइडियाज बेचे। तो जो रेनेसांस मैन है वो हमेशा मैप देखता है,
वो देखता है नक्शे पे वो कहाँ खड़े, वो अपनी लोकेशन देखता है कि मेरी लोकेशन क्या है, मैं कैसे अपनी ताकत को, अपनी रिसोर्सेज को बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन दिलचस्प बात है कि व्हेन ही वांट्स टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, हिज पावर, ही वांट टू गेट मनी फ्रॉम एनी मींस। इसे इंग्लिश में कहते हैं पल्फ। पल्फ का मतलब है कि पैसे कहीं से भी हासिल हो जाए, सही तरीके से या गलत तरीके से, चाहे वो पैसे कहीं से भी आए आए ताकि वो फौरी तौर पर उससे फायदा उठा सके। इसे कहते हैं पल्फ। सो ही इज हंग्री अबाउट पावर एंड पल्फ, नंबर वन। नंबर टू, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं, क्योंकि मॉरल वैल्यू इसलिए नहीं कि वो वर्ल्डली परसूट के अंदर अपने आप को एंगेज करे। वो कह रहा है कि मैं तो नया इल्म सीखूं, मुझे मुझे वो इल्म सीखना चाहिए जो प्रॉफिटेबल, मुझे वो इल्म सीखना चाहिए जिसके बेनिफिट्स। हम देखते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो इस प्ले के अंदर जब शुरू होता है प्ले, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो कहता है कि मैं लॉजिक ने मुझे फायदा दिया है, केमिस्ट्री का भी यही फायदा है, फिजिक्स का ये फायदा है, मेडिकल साइंस का ये फायदा है, लेकिन इन तमाम चीजों का मुझे हतमी फायदा नजर नहीं आ रहा। मुझे हतमी फायदा किस चीज का नजर आ रहा है? ब्लैक मैजिक। आई शुड लर्न ब्लैक मैजिक। और वो इतना दीवाना हो जाता है उसको हासिल करने के लिए कि वो कहता है कि कोई भी मीन्स मिल जाए। वो अपने दोस्तों से पूछता है वगैरह, और बिलाखिर क्या करता है कि अपनी बीजल वेब के हवाले से अपनी सोल बेच देता है। इवन सेल हिज सोल, 24 साल के लिए अपनी सोल बेच देता है कि मुझे, तुम मेरे गुलाम हो जाओ ताकि मैं सारे ब्लैक मैजिक कर सकूं, मैं दुनिया के कर्तव्य दिखा सकूं, दुनिया के साथ इंजॉय कर सकूं, दुनिया के साथ खेल सकूं। ये है उसकी सोच। और ये सोच किसकी? ये रेनेसांस मैन की भी सोच। फिर एक और जो पहलू है, जो बहुत ही दिलचस्प पहलू है, वो ये कि रेनेसांस एज के अंदर यूरोप ने कॉलोनाइजेशन, पुर्तगाल, नेदरलैंड, इंग्लैंड, इन मुल्कों ने क्या शुरू कर दिया? इन्होंने इन्होंने कॉलोनाइजेशन। कैपिटलिज्म की वजह से इनको मौका मिल गया कि ये बिजनेसेस करें। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता से अपना आगाज किया, और फिर आस्ता आस्ता देखते देखते बंगाल से लेके आप देखते हैं पंजाब तक वो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी, बहादुर शाह जफर को फारिग कर दिया। यानी वो जो मर्चेंट करेक्टर के लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पावर को हासिल करने के लिए अपनी मिलिट्री बना ली। मिलिट्री बना ली तो उन्होंने आपस में लोगों को लड़ाना शुरू कर दिया इधर। और हम देखते क्या है कि फिर बिलाखिर उन्होंने क्या किया कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर। तो जो कॉलोनाइजेशन है वो भी किसके अंदर है? वो भी किसके पास है? वो भी इसके पास है। कि कॉलोनाइजेशन भी जो है वो क्या कर रही है, कि वो भी हम देख रहे हैं कि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, कॉलोनाइजेशन की वजह ये है कि ये रेनेसांस एज से उनको एक फितना मिला है। वो ये कि यू जस्ट एक्सपैंड, और किसी तरह से भी एक्सपैंड करो, नॉलेज बढ़ाओ, मुल्कों पे कब्जा करो। आगे देखिए, अफ्रीका देखिए आप, अफ्रीका के अंदर एक्सपेंशन देखिए। और एक नॉवेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, और आप यकीन करें कॉलोनाइजेशन इज अबाउट हार्ट ऑफ डार्कनेस, और उसके इफेक्ट्स देखिए, और उसके सब कॉन्टिनेंट पे इफेक्ट्स। तो रेनेसांस जो है, एक तरफ उसका पहलू ये है कि उससे उससे एलाइटमेंट पैदा हो रही है, उससे लोग जो है वो नए चीजें सीख रहे हैं, नए इल्म सीख रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है। यूरोप जो है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस से निकल रहा है, और वो निकल के क्या कर रहा है? वो खुद एक रोशनी की तरफ चला जा रहा है। और दिलचस्प बात है कि वो खुद रोशनी की तरफ आ रहा है, और वो दूसरों को गुलाम बना रहा है, और दूसरों को हार्ट ऑफ डार्कनेस में ले जा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। मैं अब आगे जाना चाहता हूँ। मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो कि उस नए सिस्टम के बारे में है, जो कि अमर्ज हो रहा है। तो लेट मी शेयर इट। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। आपने मुझे सिर्फ 5 मिनट देने हैं, उसके बाद आई विल बी ओपन फॉर डिबेट। एक सेकंड।
तो ये जो है लिटरेचर ग्रो कर रहा है, और लिटरेचर के अंदर जो चीज, जो अगली चीज जो बड़ी अहम है, वो आप लोगों में से पूछ सकते हैं, जिसको मैंने आपको बताया, रिलीजियस चेंज। जो चेंज जो कि इंटेलेक्चुअल चेंज, आइडियोलॉजिकल चेंज, यानी क्या नजरिए में तब्दीली आई है, मजहबी तब्दीली कैसे आई है, प्रोटेस्टेंट हो गए हैं। एक और एलिमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन है, वो है ह्यूमनिज्म। मैंने आपको साथियों बताया था कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो क्या हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो बुक्स बड़ी तादाद में क्या हुआ, छपने लग गई। यहां पर मैं रुक के एक लम्हे के लिए आपको बताना चाहता हूं कि जब यहाँ पर यूरोप के अंदर बुक्स प्रिंट हो रही थी और प्रिंटिंग प्रेस लग रही थी, तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। ऑटोमन एम्पायर में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। इसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर पीछे रह गई। इसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेस ना लगाने की वजह से मुस्लिम पीछे रह गए, और यूरोप ने इसके ऊपर भरपूर तरक्की। जो रेनेसांस ने क्या किया, जब बुक्स प्रिंट की, देन व्हाट बुक्स डिड, दे हेल्प टू सेपरेट awareness of a new philosophy that emerged when a Renaissance scholar known as humanist returned to the works of the ancient practice. एक चीज हमें नजर आती है रेनेसांस पीरियड के अंदर कि जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, ग्रीक लिटरेरी जाइंट्स हैं, चाहे वो सोफोक्लिस है, चाहे वो यूरिपिडस है, चाहे वो एस्किलस है, उसके से इंटरेस्ट पैदा होता जाता। रेनेसांस के अंदर ग्रीक लिटरेचर अपने अरूज पे पहुंच जाता, और वो ये समझते हैं कि हम जो है वो जो हमारी टीचिंग्स थी, जो कि गाइडेड बाय चर्च थी, अब टाइम ऐसा आ गया है कि हम ना इसको जरा चेंज करें, और हम किस तरफ जाएं, हम जाएं टुवर्ड्स द राइटिंग ऑफ एशियंट पैगन ग्रीस एंड रोम कॉल्ड द क्लासिक्स। जो क्लासिक्स थे हम उस तरफ जाएं। जैसा आपके टाइटल कोर्स का टाइटल का नाम है क्लासिक्स इन ड्रामा, ठीक है, एंड वी आर गोइंग बैक टू द क्लासिकल एज, ठीक है। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा यार कि हम उधर जाते हैं और हम ये देखते हैं कि कैसे हम जो है वो ये इन टेक्स्ट से फायदा उठा सकते हैं। और वो टेक्स्ट क्या थी, उन टेक्स्ट में लॉजिक थी, विजडम उनको नजर आई, एरिस्टोटल की लॉजिक नजर आई, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार हम पीछे जाते हैं और हमने एक चीज और करनी है कि हम दुनिया में, जिस तरह से ग्रीक बिलीव करते थे कि दुनिया को जन्नत बनाया जाए, तो हम तो दुनिया को जन्नत बनाते हैं, वी ट्रांसफॉर्म दी वर्ल्ड। हम एक्सटर्नल ताकत पर क्यों बिलीव करें, हम क्यों ना इंटरनली अपना सब कुछ कर दें। हम नॉलेज लाएं, विजडम लाएं, अपने प्रैक्टिसेस लाएं और यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें। और उन्होंने फिर क्या किया कि नॉलेज हासिल किया, उन्होंने आर्किटेक्ट स्टडी की, उन्होंने ग्रीक बिल्डिंग्स को स्टडी किया, उन्होंने रोमन बिल्डिंग्स को स्टडी किया। उन्होंने कहा ये कैसे चीजों को कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, इनको स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसको हम लेके आगे चलते हैं। अब मैं यहां पे आना चाहता हूं, ये जो मैंने इंटेलेक्चुअल चेंज की बात की है साथियों, ये जो सोच की करवट की बात की है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि ये हमारा कोर्स ही इसके ऊपर, कोर्स डिपेंड करता है ये सोच को समझने के लिए। मिडिवल थॉट है और ह्यूमनिज्म, इनमें फर्क क्या है? पहली चीज है, वो कहता है चर्च एंड किंग मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले मिडिवल थॉट में, यानी यूरोप में रेनेसांस लिटरेचर, यानी शेक्सपियर के और क्रिस्टोफर मार्लोव के आने से पहले की दुनिया क्या थी, वो मिडिवल थी। उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस थी? चर्च इंपॉर्टेंट था, किंग इंपॉर्टेंट था। ह्यूमनिज्म में क्या है? इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट है, उनकी सोच इंपॉर्टेंट। पहले सोच के थी मैन इज सिंफुल, ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन क्या था? ओरिजिनल सिन ये था कि एडम और ईव ने गलती की, और उन गलतियों की सजा किसको मिल रही है? दुनिया को मिलेगी, और जब तक दुनिया रहेगी सजा ही सजा। ये कैथोलिक जो थॉट है मुझे, इसकी जगह क्या सोच आ गई? प्रोटेस्टेंट सोच आ गई। वो सोच क्या थी? मैन इज गुड विद डिग्निटी एंड वैल्यू, यानी जिस बंदे की डिग्निटी है और वैल्यू है वो गुड है। यानी इंसान खुद जज बन गया, अगर उसकी डिग्निटी है, उसकी वैल्यू है,
नो प्रॉब्लम। फिर मिडिवल थॉट क्या थी? हायरार्की ऑफ पीपल्स वर्थ। मैं कि बादशाह का बेटा हूं, मैं अमीरजादा का बेटा हूं, मैं फलां हूं, मेरी उसकी वजह से मेरी मेरी ताकत है। अब क्या है? डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ऑल पीपल। डॉक्टर फॉस्टर्स को देखिए, उसने तालीम हासिल की, पीएचडी कर ली, पीएचडी की वजह से उसकी वर्थ बनी। अब वो किसी वो कमजोर घराने से ताल्लुक रखता है, गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, डजंट मैटर। उसके पास एक बेस्ट एजुकेशन है, उसके पास एक बेहतरीन तालीम है, वो पीएचडी है, तो वो क्या है? उसकी डिग्निटी है और वर्थ। तो डिग्निटी और वर्थ है वो क्या है? वो ऑल पीपल। फिर उसके बाद क्या है? ये बड़ा अहम है, और मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा इसकी खूबसूरती समझे इस सोच के साथ, इस सोच के साथ। लाइफ प्लेजर्स मस्ट बी अवॉइडेड टू प्लीज गॉड। कि जो लाइफ के प्लेजर्स हैं उनको उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ। किसको? क्यों? इसलिए कि खुदा को खुश रख। खुदा को खुश रखने के लिए क्या जरूरी है? कि आप लाइफ की जो प्लेजर्स हैं क्या करें? उनको उनको क्या करें? भूल जाए। नन को देख लीजिए, आप फादर को देख लीजिए, पादरी को देख लीजिए। कैथोलिक मजहब, कैथोलिक रिलीजन के अंदर जो क्रिश्चियनिटी का एक विंग है, उसके अंदर आप जो फादर है और जो नन है, वो दे कैन नॉट मैरी, शादी नहीं कर सकते। क्योंकि शादी की तो क्या हो, फिर सिंफुल होगा। ठीक है, ओरिजिनल सिन के अंदर फिर आ। तो क्या है कि लाइफ के प्लेजर्स क्या करने हैं? अवॉइड करना, खुद पे सख्ती तारी करनी। यहां पर वो क्या कहता है? ह्यूमनिज्म क्या कहती है? ह्यूमनिज्म कहती है कि पीपल कैन एंजॉय लाइफ एंड स्टिल बी गुड क्रिश्चियन। कि आप लाइफ एंजॉय करें। प्रोटेस्टेंट को देखें, ठीक है, आप इंग्लैंड इस वक्त जो है उसमें मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट है। स्पेन में आज भी तो जो मेजॉरिटी है वो, और इटली में जो मेजॉरिटी वो कैथोलिक्स। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप यू कैन स्टिल एंजॉय लाइफ एंड स्टिल बी गुड क्रिश्चियन। ठीक है, अब आप अगली चीज देखिए, एक्सेप्ट द ह्यूमन कंडीशन। फेट के ऊपर बिलीव करो। मिडिवल थॉट जो है वो क्या है? वो क्या है कि फेट पर बिलीव करें। फेट चेंज नहीं किया जा सकता, ऑल्टर नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट द ह्यूमन कंडीशन। जो भी ह्यूमन कंडीशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए। और ह्यूमनिज्म में क्या है? इनकरेज ह्यूमन अचीवमेंट। यानी जो इंसान की अचीवमेंट है उसको इनकरेज करें। क्या है? अच्छा ये चीज है, बहुत अच्छा, तारीफ करें, उसको मेडल दें, उसको चीजें दें, ताकि क्या चीज पैदा हो? ताकि उसके अंदर पैदा हो कि ही और शी कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ही और शी कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। छठी चीज क्या है? एक्सेप्ट चर्च डॉक्ट्रिन विदाउट क्वेश्चन। कोई सवाल ना पूछे। जो चर्च कहता है, वो जो कहता है वो ठीक है। आप सवाल पूछने की जरूरत नहीं कर सकते। गलीलियो गैलीलाई ने सवाल पूछा था, रुल गया, तोड़ के रख दिया चर्च ने उसको। वो अलग बात है कि कई सौ साल बाद माफी मांगी उसकी, लेकिन आप चर्च को चैलेंज नहीं कर सकते। चर्च को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी डॉक्ट्रिन को। उसके डॉक्ट्रिन इज अबाउट आइडियोलॉजी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चैलेंज, सिंपल, पीरियड। इधर क्या है? ह्यूमनिज्म में क्या है? ईच इंडिविजुअल फाइंड द ट्रुथ थ्रू हिमसेल्फ। जो मैंने आपको कहा कि अपने अंदर झांके, अपने अंदर झांक के देखिए कि यार ये मैं कैसे, मैं सच क्या है? सच उसके अंदर है, इंसान के अंदर सच। ये वो चीजें हैं साथियों जो मिडिवल थॉट के साथ ह्यूमनिज्म की तरफ, रेनेसांस पीरियड के अंदर इंसान की आपको ग्रोथ नजर। ये वो वैल्यू सिस्टम्स हैं जो आपको नजर आए। अब आप ये अगर आप इसे गौर से देखें, तो क्या आप नहीं देख रहे कि इनके अंदर जो है वो एक रेडिकल डिफरेंस है? मैं फॉरम खोलता हूं। Hail Faustus. Hail a motion picture that conjures up another world, another time, to enthrall us with the story of Dr. John Faustus, who bequeathed his soul to the devil in exchange for the powers of hell.
Mephistopheles! Mephistopheles! Richard Burton, universally acclaimed as one of the greatest actors of our time, gives us yet another brilliant portrayal as Faustus, whose friends were the devil's disciples. Now, Faustus, what wouldst thou have me do? Whose greatest enemy was himself. I charge thee, wait upon me whilst I live, and do whatever Faustus shall command. Be it to make the moon drop from a sphere or the ocean to overwhelm the world. Let me have a wife, the fairest maid in Germany, for I am wanton and lascivious and cannot live without a wife. And Mephistopheles fetched him a wife in the devil's name. Richard Burton as Dr. Faustus, Elizabeth Taylor as the beautiful Helen of Troy. Was this the face that launched 1,000 ships and burned to the topless towers of Ilium? Burton, Taylor. Burton, Taylor. They come together in sin and temptation to reenact the story of Dr. Faustus. Run, Faustus, run! Whither shall I fly? To God! If unto God he cast me down to hell! The 7 deadly sins were his commandments. Hell! Pride, wrath, envy, lust. Dr. Faustus, he sold his soul for the powers of Lucifer, the wiles of Beelzebub, the cunning of Mephistopheles. Ha 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 ha!